Hello everyone. Yes, what I'm I'm expecting. Yes. Tushar Kamble. What is your I'm name, qualification, and I'm Tushar Kamble. I have done my computer science engineering from RMD Good Institutes, and currently I'm working as a cloud support engineer at Tech Mahindra. yes, currently you are working as. Cloud Okay, support, infra great. support. And how long you are working in Tech Mahindra? It's been तुषार, around 2 years for me. कब से जॉब कर रहे हो तुषार? हाँ. ओके, एंड इट्स इन क्लाउड राइट? Yes. कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करते हो तुषार? We are using GCP. Which cloud platform you are using? GCP. GCP, great. What about Ashraf? Okay, Tushar. What about Yes, sir. Hello. I'm Ashraf. yes, Hello. Ashraf? Can you hear me, sir? Hello. Yes, Ashraf, you can tell. Yes, sir. I have done my bachelor's in mechanical engineering. I am audible to And you or not? yes, sir, you are audible to me. I don't know about Mhm. others, but you are audible to me. Okay, I have just I done my want your mechanical engineering. introduction, right? Yes, sir. I've done in Okay. engineering in mechanical background. Are you working currently or not? No, sir. Currently, I am looking for the job. So I've decided to pursue this course and get into this field. Okay, great. Thank And you, what sir. about Prashant? Yes, Prashant. Yes, hello, sir. Uh, I आप did my बोलिए. degree in mechanical engineering, and since last 6 months I am not working. Mm-hmm. So that's why I want to Working or switch not? to Working or not not? working. What about Nikhil? What about Nikhil? What about Nikhil? थोड़ा म्यूट करो अभी. Hello, mute. Yes, Nikhil, I am audible or not? Shrikant, यस सर. हेलो. यस सर. हाँ, सर आपके आपकी बारे में आवाज़ बताइए काफ़ी थोड़ा सा. लेट आ रही है. क्या हुआ? मेरी आवाज लेट आ रही है नहीं, अभी या? तो बराबर बराबर आ रही है. ओके, देन कंटिन्यू. कुछ रहेगा हाँ, थोड़ा. कनेक्टिविटी इश्यू तो हम लोग देख लेंगे. ओके ओके. यस श्रीकांत. नो सर, अभी बराबर आ रही है आवाज. अगर कोई इशू हुआ तो आई विल लेट यू नो. ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं. व्हाट अबाउट यू, कहाँ जॉब करते हो आप? टाटा में जॉब करते हो ना? एंड वेयर? ओके, आपका नाम क्या है? अजय शिंदे. अजय शिंदे. एंड आपका? मोनाली. तो चलो स्टार्ट करें. सो बेसिकली स्क्रीन दिस है. हाँ. ओके, तो बेसिकली हमारा कोर्स क्या है? It's a cloud and DevOps, right? And mostly it's a AWS cloud and DevOps, right? Any idea what is AWS cloud? क्या होता है? AWS क्लाउड और AWS एक इंस्टेंस क्रिएट करना होता है, जैसे कि क्लाउड के लिए हम जो सर्विसेज करते हैं, वेब सर्विसेज हो, वो AWS में आती है. AWS की अलग सर्विसेज है. वो भी इसको नहीं आना चाहिए. AWS एक वेब सर्विसेज है जो होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड करती है. ओके, सर्वर्स प्रोवाइड कराता है. हेलो. व्हाट इज क्लाउड बेसिकली? कौन बता पाएगा आप में? ये श्रीनाथ गुर्दे. हेलो.
Hi, sir. Cloud is basically a Consider service which my Hi, I'm audible. मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, you are audible. I am expecting answer. What is cloud? Okay, so cloud is a service which we can rent out or use for our purpose instead of using physical servers or Yes. physical mechanism and machines. So ते उड़ू देता क्या थोड़ा सा? अरे यहाँ पे कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा है, आवाज नहीं जा रही। हाँ सर, थोड़ा ब्रेक हो रहा है आवाज आपका। टीचर में मुझे रिप्लाई नहीं मिल रहा है ना, स्टूडेंट का कंप्लेंट भी है कि आवाज हाँ नहीं आ सर, रहा है। लैग हो रहा है सर आवाज बहुत। हाँ, आवाज लैग हो रहा है ना। यस सर। 1 मिनट होल्ड Yes, कीजिए। sir. Yes, Delay sir. है sir voice में. अगर आवाज आ रहा है तो कंटिन्यू करूँ क्या थोड़ी देर? यस सर। यस सर। Yes, ओके। sir. Yes, sir. You can continue. अगर आवाज का कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बताइए। सो व्हाट आई एम सेइंग, AWS क्लाउड एंड डेवऑप्स। तो क्लाउड क्या है, AWS क्या है? AWS इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, राइट? What is AWS? AWS is cloud computing platform, right? खाली के लिए बीच में से मीटिंग चल रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, प्रॉब्लम ही आ रहा है और आवाज कंटिन्यूसली लैग हो रहा है। आवाज लैग हो रहा है ना, खाली कीजिए। यस हाँ सर। सर। यस पुष्पा, अशरफ, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। Yes, sir. Clearly audible. क्लियर है? Yes. Yes, yes. Okay, so we will start, right?
आपका नाम? इरशाद। इरशाद। आप 5-10 मिनट रुकिए, और प्रॉब्लम आता है तो मैं आपका आवाज दूंगा, नहीं तो फिर आप जा सकते हो, है ना? सो विल स्टार्ट। तो हम लोग देख रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? तो उसमें क्या देख रहे हैं? AWS क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज फॉर अस, है ना? क्या करता है क्लाउड प्लेटफॉर्म? ये आपका इट प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, services for clients, sorry, infrastructure services for clients, right? अब देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट AWS क्लाउड, है ना? तो वैसे तो बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म है, AWS है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर है, गूगल क्लाउड है, जो नॉर्मली हम लोग सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि इनका मार्केट शेयर काफी ज्यादा है, और उसमें से भी AWS का मार्केट शेयर कितना है? नियर अबाउट 30 to 34% है। सो दिस इज अ मार्केट शेयर, मार्केट लेयर। ये क्या है? मार्केट शेयर आई एम सेइंग। सो दैट्स व्हाई AWS क्लाउड यूज मोस्टली, और इसका ओपनिंग भी मार्केट में क्या रहता है कंपेरेटिवली बाकी क्लाउड से ज्यादा रहता है। ओके, तो कौन कौन सा सर्विस ये देता है? तो बेसिकली ये जो प्रोवाइड हमको करता है, दैट इज अ वर्चुअल मशीन। द वर्चुअल मशीन इज नथिंग बट द वर्चुअल सर्वर। वर्चुअल मशीन का मतलब क्या होता है? इज नथिंग बट द वर्चुअल सर्वर। लेकिन इसका नाम क्या है यहाँ पे? EC2। व्हाट इज द नेम? EC2, है ना? आपको स्टोरेज मिलता है। क्या मिलता है? जहाँ पे हम लोग डेटा रख सकते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। ओके ओके, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? S3 बोलेंगे। S3 मीन्स सिंपल स्टोरेज सर्विस। हमको क्या मिलता है? यूजर एंड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमको मिलेगा IAM। IAM का मतलब होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इसके बाद क्या है आपके पास? VPC है। VPC का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, है ना? What is this? Basically, it is nothing but the private network on AWS cloud. इसका मतलब क्या होता है? It is nothing but the private network on AWS cloud, right? And we have the database. ओके, आपके पास RDS भी है, और आपके पास क्या है? NoSQL डेटाबेस भी है। क्या है? NoSQL डेटाबेस का एग्जांपल क्या है? DynamoDB। और RDS का एग्जांपल क्या है? RDS बहुत सारे अवेलेबल है। ओके, RDS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। आपके पास और भी सर्विसेज है, जैसे इलास्टिक बिनस्टॉक है, आपके पास क्या है? लैम्बडा है, आपके पास क्लाउड वॉच है। क्लाउड वॉच किस लिए होता है? मॉनिटरिंग करने के लिए होता है। क्या होता है? ओके, एक्सेट्रा। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज आपके पास अवेलेबल है। क्या है? यू हैव लॉट ऑफ सर्विसेज अवेलेबल। ओके, और यही सब सर्विसेज हमको AWS में सीखना है। यही सब सर्विसेज हमको AWS में सीखना है। सो AWS इज platform, it's a virtual platform where we can get access of the infrastructure services, right? जैसे मैंने आपको डेमो सेशन में बताया था,
नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्या होता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। व्हाट इज क्लाइंट मशीन? एंड मशीन इज अ क्लाइंट। मतलब हम लोग जो मशीन यूज करते हैं वो क्या है? क्लाइंट। ओके। सर्वर हमारा कौन सा है? सर्वर बेसिकली क्या होता है? इधर सर्वर वी कैन प्लेस ऑन प्रीमाइसेस। मैंने 3 चीजें बताया था आपको। सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ऑन प्रीमाइसेस में रख सकते हो। अगर ऑन प्रीमाइसेस में नहीं रहा तो आप कहाँ रख सकते हो? डेटा सेंटर में रख सकते हो। और डेटा सेंटर पे नहीं रखना है तो आप कहाँ रख सकते हो? क्लाउड एनवायरनमेंट में रख सकते हो, है ना? तो हम लोग अभी क्या करेंगे? वी विल सी हाउ टू प्लेस और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन सर्वर। अब इसका एडवांटेजेस क्या है? यस फ्रेंड्स। अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? यस विशाल, करण। ऑडिबल सर। ओके। देखो मैं चाहता हूं कि हमारा सेशन क्या रहे? इंटरैक्टिव रहे। अब इंटरैक्टिव रखने के लिए आपको क्या करना है? यू नीड टू टॉक टू मी, है ना? अगर आप कैमरा शेयर कर ऑन रखना चाहते हो तो इट इज मोर बेटर, सो दैट वी विल हैव ट्रांसपेरेंसी, राइट? अगर नहीं रखना है तो आई कैन नॉट टेल, लेकिन आप थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहो। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो क्या होगा? सेशन विल बी गुड, राइट? नाउ अब देखिए, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्लाउड, क्लाउड डायरेक्टली आया क्या? नहीं। व्हाट वाज द एनवायरनमेंट बिफोर क्लाउड, राइट? हमको क्या देखना है? एनवायरनमेंट बिफोर क्या था? एक था ऑन प्रीमाइस बेयर मेटल सर्विस, राइट? बेयर मेटल का मतलब क्या होता है? फिजिकल सर्विस। दूसरा है ऑन प्रीमाइस वर्चुअल एनवायरनमेंट। क्या है? ऑन प्रीमाइस वर्चुअल एनवायरनमेंट, राइट? तीसरा है हमारे पास डेटा सेंटर्स, और चौथा है हमारे पास क्लाउड प्लेटफॉर्म, राइट? चौथा क्या है? क्लाउड प्लेटफॉर्म। अब मैंने उस दिन आपको डेफिनेशन बताया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का। तो बेसिकली देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज द सर्वर कंपोनेंट, अनदर इज क्लाइंट कंपोनेंट, राइट? सर्वर कंपोनेंट क्या होता है? जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है वो है सर्वर। और क्लाइंट कंपोनेंट क्या है? एंड डिवाइसेस इज कॉल्ड क्लाइंट, है ना? और कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताए थे सर्वर के। कौन कौन से थे? एफटीपी सर्वर, राइट? दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर। प्रोटोकॉल। दूसरा है सर्वर के एग्जांपल्स बता देता हूं, है ना? एक है ऑथेंटिकेशन सर्वर। ऑथेंटिकेशन में आप क्या बोल सकते हो? माइक्रोसॉफ्ट का एडी बोल सकते हो, एक्टिव डायरेक्टरी, है ना? ये बेसिकली प्रोडक्ट किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है, राइट? एंड वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट है ऑथेंटिकेशन के लिए। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इज प्रोवाइड्स। ये क्या क्या प्रोवाइड करता है? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि समझो इस अर्बर एकेडमी में नियर अबाउट 200 एम्प्लॉयज काम करते हैं, साथ में स्टूडेंट भी ले लो, 300 ले लो का। सबके पास एक एक डिवाइस होता है। अभी होता क्या है? वी आर लॉग इन विथ योर ओन डिवाइस क्रेडेंशियल। जैसे आप अपने लैपटॉप पे लॉग इन करते हो, वो अलग क्रेडेंशियल आपका है। मैं अपने डिवाइस पे लॉग इन करता हूँ, अलग क्रेडेंशियल से करता हूँ, है ना? ये क्रेडेंशियल कहाँ सेव है? मेरे डिवाइस पे है। लेकिन ऑथेंटिकेशन सर्वर में क्या होता है? ऑथेंटिकेशन को ही हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी सर्वर। क्या बोलते हैं?
वहां पे एक सेंट्रल मशीन रहेगा, वहां पे क्या रहेगा, एक सेंट्रल मशीन रहेगा, और क्लाइंट जब लॉगिन करेगा, क्लाइंट विल गेट ऑथेंटिकेटेड फ्रॉम द सेंट्रल मशीन। क्लाइंट कहां से Is it ऑथेंटिकेट used for होगा? security purpose, no, sir? Yes, you can say it is for the security purpose. Hmm. ऑथेंटिकेशन सेंट्रलाइज्ड होता है। ये क्या होता है? Okay. ऑथेंटिकेशन और ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, है ना? stored on central machine। मतलब अभी हम लोग लॉगिन है, हर किसी के पास लैपटॉप से कनेक्टेड है, हर किसी का ऑथेंटिकेशन अपने ओन डिवाइस पे है। लेकिन अगर हम लोग, जैसे आप नाम के मोनिका, मोनाली, मोनाली टाटा मोटर्स में काम करते हैं, टाटा मोटर्स, टाटा टाटा कम्युनिकेशन में जॉब करती है। कितने एम्प्लॉयज है मोनिका टाटा कम्युनिकेशन में? बहुत सारे। चलो एक काउंट लेते हैं हम लोग, 1000 एम्प्लॉयज का काउंट। हर कोई एम्प्लॉय कंप्यूटर से लॉगिन करता है, राइट? अब जरूरी है मोनाली कि आप ऑफिस में जाने के बाद एक ही मशीन से लॉगिन करते हो? आपको एक यूजर नेम पासवर्ड मिला होगा, एंड विद द सेम यूजर नेम पासवर्ड आप आपके फ्लोर पे किसी भी मशीन पे बैठ के काम कर सकते हैं, राइट? मतलब सेम यूजर नेम पासवर्ड से हम लोग लॉग इन कर सकते हैं। हमारे लैपटॉप पे कर सकते हैं क्या? जैसे मेरे लैपटॉप का ऑथेंटिकेशन अलग है, इसी ऑथेंटिकेशन से मैं किसी और के लैपटॉप पे काम कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा ऑथेंटिकेशन सेंट्रलाइज नहीं है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक आपका सेंट्रल सर्वर रहता है जिसके ऊपर ऑथेंटिकेशन सर्वर कॉन्फ़िगर्ड रहता है। एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी। क्या दे सकता हूँ? एक्टिव डायरेक्टरी। उस मशीन पे पूरा आपका सबके यूजर नेम पासवर्ड सेव रहेंगे, ओके? और वहां पे एक डोमेन क्रिएट रहता है। डोमेन मतलब एक लॉजिकल आइडेंटिटी होता है। अगर आपका मशीन उस डोमेन में पार्टिसिपेट करेगा, जैसे टाटा कम्युनिकेशन में हो, तो आपके डोमेन का नाम tatacommunication.com माइट भी ऐसा हो सकता है। अब यूजर अगर कोई लैपटॉप उस डोमेन में पार्टिसिपेट करेगा, तो उस ऑथेंटिकेशन सर्वर पे जो यूजर नेम क्रिएट रहेगा, उस यूजर नेम से आपके ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी डिवाइस पे लॉग इन कर सकते हो। अभी सिर्फ ऑथेंटिकेशन ही देता है क्या? नहीं, ऑथराइजेशन भी देता है। क्या देता है? ऑथराइजेशन। व्हाट एग्जैक्टली द ऑथराइजेशन इज? परमिशन। क्या देता है? परमिशन। मतलब आपने लॉगिन किया तो आप जब लॉगिन करते हो तो आपको एक टोकन असाइन होता है। क्या होता है? टोकन। एंड यूजिंग टोकन आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग रिसोर्सेस एक्सेस कर सकते हो। अब रिसोर्सेस की बात करूंगा तो क्या क्या रिसोर्सेस हो सकते हैं? हो सकता है प्रिंटर, हो सकता है शेयर्ड फोल्डर, राइट? हो सकता है डिवाइसेस, है ना? मतलब अगर मोनाली ने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद उसे एक टोकन मिला, इनके ऑफिस में हो सकता है 10 प्रिंटर है टोटल। अब मोनाली नाम के जो यूजर है उसको 5 प्रिंटर पे एक्सेस दिया है, 5 प्रिंटर पे एक्सेस नहीं दिया है। तो जिन प्रिंटर पे एक्सेस है वहीं पे वो प्रिंट कर पाएंगे, जहां पे एक्सेस नहीं है वहां पे प्रिंट नहीं कर पाएंगे। सेम शेयर्ड फोल्डर का भी होता है। हो सकता है 50 फोल्डर्स होंगे अलग अलग डेटा के लिए, तो मोनाली को एक्सेस है सिर्फ उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड 5 फोल्डर का, तो बाकी फोल्डर में मोनाली एक्सेस कर सकती है क्या? नहीं। ओके। दूसरा क्या है? तो दूसरा है आपको, दूसरा क्या है? अबे ऑथेंटिकेशन AWS कैसे देता है? IAM के थ्रू देता है। किसके थ्रू? ऑथेंटिकेशन के लिए AWS के पास सर्विस कौन सी है? IAM। IAM का मतलब होता है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। क्लियर? दूसरा है आपका DNS। क्या है आपका? DNS को बोला जाता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या बोला जाता है? आप यूज करते हो क्या DNS? कहाँ पे आप यूज करते हो? आइडिया नहीं होगा।
हम डे टू डे लाइफ में डोमेन नेम यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करेंगे? चलो एक काम करते हैं, google.com। google.com, चलो अच्छा एग्जाम्पल दिया, google.com। तो ये इसके लिए डोमेन नेम है। चलो मैं थोड़ा सा रिलेवेंट दे देता हूँ, आर्बर का कोई वेबसाइट है क्या? आर्बर एकेडमी है ना? सो वेयर इज आर्बर एकेडमी? दिस इज arboracademy.in। ये आर्बर का वेबसाइट है। अब आर्बर का वेबसाइट जो आपने एक्सेस किया, वो डोमेन नेम से एक्सेस किया, आपने आईपी से एक्सेस किया क्या? नहीं। मैं ना अगर हो सके तो मैं देता हूँ, एक मिनट। Probably this is the IP address of arboracademy.in। मतलब बेसिकली क्या है, प्रोबेबली हो सकता है, मैं ट्राई करता हूँ यार। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इफ आई पेस्ट दिस IP एड्रेस, प्रोबेबली द IP हार्बर वेबसाइट शुड गेट ओपन। लेकिन होता क्या है ना, नॉर्मल छोटा छोटा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एक ही सर्वर पे बहुत सारा वेबसाइट होता है। क्या होता है? एक ही सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट। आपको आइडिया होगा, आप वेबसाइट देते हो ना, तो इसको क्या बोलते हैं? सिंगल सर्वर पे आप मल्टीपल वेबसाइट दे सकते हो, शेयर्ड होस्टिंग दे सकते हो। तो आर्बर का वेबसाइट क्या रहेगा? शेयर्ड होस्टिंग रहेगा। लेकिन यही मैं अगर गूगल करता हूं तो NS लुकअप, google.com है ना? तो दिस इज द IP एड्रेस ऑफ गूगल। ओके, अब इस IP एड्रेस को अगर मैं यहाँ पे डालूंगा, तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग गूगल पेज, है ना? तो डीएनएस सर्वर बेसिकली क्या करता है? डीएनएस सर्वर रिजॉल्व्स नेम टू IP एड्रेस। क्या करता है? रिजॉल्व नेम टू IP एड्रेस, राइट? Hello, sir. हाँ बोलिए ना। Yeah, so it is working like a phone directory, correct? यस यू कैन, आप Yeah, बोल yeah. सकते हो फोन डायरेक्टरी। Yes, okay. यस, इट इज अ डेटाबेस लाइक अ फोन डायरेक्टरी। आप नाम सर्च करोगे तो वहां पे क्या आएगा? फोन नंबर है ना? Yes, yes, yes. और AWS में आपका डीएनएस सर्वर क्या है? रूट 53। क्या है? Route आपको 53. लगेगा कि ये रूट 53 नाम क्यों पड़ा? तो बेसिकली डीएनएस का पोर्ट नंबर जो है वो है 53। डीएनएस का पोर्ट नंबर क्या है? 53। और ये करता क्या है? रूट करता है। क्या करता है? ट्रैफिक को रूट करने का काम करता है। इसीलिए इसको क्या बोला है? रूट। थोड़ा सा हवा लग रहा है। हाँ। मेरा मॉडल फैन चलोगे तो बहुत स्पीड में चलता है। इसका नाम क्या है? रूट 53। अब ऐसे बहुत सारी सर्विसेज है ना? कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। वेब सर्वर, राइट? अब वेब सर्वर नॉर्मली एक ही वेबसाइट होस्ट करना चाहिए, लेकिन हम लोग बहुत सारी वेबसाइट एक ही सर्वर पे होस्ट करते हैं, क्योंकि वेबसाइट का जो साइज रहता है वो जो बहुत छोटा रहता है, मैक्सिमम वेबसाइट का। कॉमर्स साइड होगी तो नॉर्मली साइज ई कॉमर्स साइड हो गया। ई कॉमर्स साइट रहेगा ना, तो बेसिकली क्या होता है, उसका डेटा बहुत ज्यादा रहता है। ओके, इसीलिए नॉर्मली एक ही सर्वर पे एक ही वेबसाइट रखते हैं। लेकिन छोटा छोटा वेबसाइट है, तो छोटा छोटा वेबसाइट का उतना डेटा ही नहीं रहता है बैकएंड में काम करने के लिए। एक सर्वर आपका मल्टीपल साइट मैनेज कर सकता है, तो इसीलिए शेयर्ड होस्टिंग से काम चला लेते हैं, है ना?
अगर वेबसाइट बड़ा है तो हम लोग एक सर्वर पे एक ही वेबसाइट कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चौथा क्या है? मेल सर्वर, राइट। पांचवा क्या है? एफटीपी सर्वर। क्या होता है एफटीपी? एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफटीपी? ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किससे यूज करते हैं एफटीपी? आपको बल्क डेटा ट्रांसफर करना है ओवर द इंटरनेट तो आप एफटीपी का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, राइट। डेटाबेस सर्वर है, आप एप्लीकेशन सर्वर बोल सकते हो, ओके, एक्सेट्रा हम लोग बोल सकते हैं। ओके, सो सर्वर एनवायरनमेंट में अलग अलग सर्वर्स होते हैं और ये सर्वर्स इंस्टॉल कहाँ करते हैं? किसी मशीन के ऊपर। सर्वर कहाँ इंस्टॉल करते हैं? इसके लिए कोई ना कोई कंप्यूटर हमको चाहिए। क्या चाहिए? वी वांट कंप्यूटर। जैसे हम लोग जो मशीन यूज करते हैं दैट इज अ लैपटॉप, लेकिन ये क्लाइंट मशीन है। क्लाइंट मशीन पे ज्यादा रिसोर्सेस की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि क्लाइंट का यूज क्या है, नॉर्मली यूजर 8 से 10 घंटा काम करता है, तो उतनी ही देर चलना चाहिए। ओके, एक यूजर के लिए जितना सफिशिएंट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए इस लैपटॉप में है, इसीलिए एंड मशीन है। ओके, लेकिन सर्वर पे क्या होता है? सर्वर पे सर्वर मशीन का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा रहेगा। सर्वर मशीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? सर्वर मशीन का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि सर्विस आप जो कॉन्फ़िगर करते हो उस सर्विस को बहुत सारे यूजर एट अ टाइम एक्सेस करते हैं। एक तो सर्विस का लोड और फिर यूजर का भी लोड, एंड दैट सर्विस शुड रन 24/7 365 डेज। अगर आपने कोई वेबसाइट कॉन्फ़िगर किया या फिर आपने मेल सर्वर कॉन्फ़िगर किया जहां पे यूजर्स के ईमेल है ना, जैसे आपका नाम फिर से बोलिए। मोनाली। तो मोनाली टाटा कम्युनिकेशन में जॉब करती है ना, तो माइट बी 1000 एम्प्लॉइज इज वर्किंग इन टाटा कम्युनिकेशन। हर एक का मेल बॉक्स का साइज क्या रहेगा? हो सकता है 4 या 5 जीबी, नॉर्मली 10 जीबी ले लेते हैं। 15 जीबी मैक्स गूगल पे नॉर्मली देते हैं 15 जीबी। अगर आपका प्राइवेट मेल सर्वर प्रोवाइडर रहेगा तो वहां पे अलग अलग रहता है साइज, है ना। लोगों पे मैक्सिमम 10 रहता है। हाँ, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ। अगर आपका कस्टम मेल सर्वर रहेगा, अगर आपका खुद का मेल सर्वर बनाओगे तो वहां पे हो सकता है आप मेल मेल बॉक्स का साइज का लिमिटेशन आपके पास रहे, है ना। तो सर्वर आपका 24/7 ऑन होना चाहिए, इसलिए सर्वर मशीन क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। किस तरह से होता है सर्वर मशीन, पता है? अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, सर्वर मशीन, तो सी इमेजेस दिखा दे तो, है ना। ये देखिए सर्वर इस तरह से होते हैं। क्या होते हैं? सो बेसिकली दिस इज द सर्वर्स। ये क्या है? ये सर्वर्स है। इसको बोलते हैं आपका टॉवर सर्वर, एंड दीज आर कॉल्ड द ब्लेड सर्वर्स। अब इनको ब्लेड सर्वर्स क्यों बोला जाता है? कि ये जो सर्वर्स है ना, यहाँ पे ब्लेड के समान है, मतलब यू आर इंसर्टिंग द सर्वर्स इन द रैक, इसीलिए इनको ब्लेड सर्वर बोलते हैं। नॉर्मली दोनों का आर्किटेक्चर सेम ही है। ओके, अगर आपको इस तरह से रखना है तो आप इनको क्या बोला जाता है? ये वाला, ये रहेगा टॉवर सर्वर। यहाँ पे देखिए नीचे व्हील वगैरह दिए है। नॉर्मली हर सर्वर को नहीं रहता है, लेकिन कुछ सर्वर अगर हेवी है तो उनको मूव करने के लिए क्या होता है? यू हैव अ व्हील ऑल्सो, राइट। एंड ये सर्वर जो होते हैं ना 24/7 काम करते हैं, 365 डेज। तो इनका कॉस्ट भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। कॉस्ट भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। क्लियर? ओके, सर्वर है आपके पास होंगे, है ना। हाँ, बताइए। ये बेसिकली स्ट्रक्चर है उसका, हार्ड डिस्क वगैरह। और ठीक है, ओके। तो देखिए
अब ये सब चीजें मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ, बेसिकली ऑल्दो यू आर वर्किंग ऑन द क्लाउड एनवायरमेंट, है ना, आपको कभी सर्वर देखने को मिलेगा क्या? नहीं। लेकिन बैकएंड में तो यही है ना, बैकएंड में क्या है? यही। तो सबसे पहला एनवायरमेंट जो हमारा था वो था ऑन प्रीमाइसेस बेयर मेटल सर्वर्स। क्या था? ऑन प्रीमाइसेस बेयर मेटल सर्वर्स, राइट। एक छोटा सा ना एनवायरमेंट में बनाता हूं कि हमारे पास क्या है, एक सर्वर रूम हम लोग बनाएंगे, ये समझो सर्वर रूम है। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन प्रीमाइसेस बेयर मेटल सर्वर्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑन प्रीमाइसेस बेयर मेटल सर्वर्स, है ना। बेयर मेटल मतलब फिजिकल सर्वर्स, राइट। तो समझो ये आपका सर्वर रूम है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप? सर्वर्स रखेंगे, फिजिकल सर्वर्स, चाहे वो रैक माउंटेड हो, चाहे वो टावर सर्वर है। समझो आपको ऑर्गेनाइजेशन को कितना चाहिए? 5 सर्विसेज चाहिए। तो फिजिकल सर्वर आपने 5 रखा, ओके। इसके ऊपर क्या करोगे आप? ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए? आई एम टॉकिंग अबाउट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा होता है? सॉरी, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास क्या है? लिनक्स है, लिनक्स सर्वर। लिनक्स के बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स है, जैसे रेड हैट लिनक्स है, सेंटोस है, ओके। लेकिन आप सभी को एक ही लिनक्स समझो फिलहाल तो, ओके। दूसरा है विंडोज सर्वर, विंडोज मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। और तीसरा है यूनिक्स सर्विस। अभी लिनक्स में अलग अलग आते हैं, जैसे रेड हैट है, सेंटोस है, उबंटू है, बहुत सारे हैं, 20-25 तो हो गए, है ना। नॉर्मली हम लोग कौन सा यूज करते हैं? रेड हैट नॉर्मली स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में रेड हैट यूज किया जाता है। आपके यहाँ भी रेड हैट यूज किया जाता है? अल्वा भी यूज करते हैं, ठीक है। अब यूनिक्स में भी कुछ है, तो यूनिक्स में क्या है? आपका है एचपी यूनिक्स, AIX। AIX किसका है? IBM का है। और आपका सन सोलरिस है। कभी नाम सुना है क्या सन सोलरिस का? सन माइक्रोसिस्टम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है सोलरिस। लेकिन अभी किसको किसने परचेस किया? इसको ओरेकल ने परचेस किया, है ना। तो सन माइक्रोसिस्टम किसके पास है? ओरेकल। अब देखो, जब से हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की बातें करते हैं, तब से इनको बहुत ज्यादा डिमांड आया है। किसको? लिनक्स को। ओके, विंडोज भी पीछे छूट गया और यूनिक्स तो पीछे ही छूट गया। हालांकि यूनिक्स काफी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो कौन सा ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं? वी कैन इंस्टॉल विंडोज और लिनक्स। नॉर्मली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाउड पे प्रोवाइड नहीं करते। नॉर्मली यूनिक्स प्रोवाइड करते हैं क्या? नहीं। आपको विंडोज मिल जाएगा, लिनक्स के अलग अलग फ्लेवर्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन यूनिक्स होता है क्या अवेलेबल? नहीं। जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है, यूनिक्स के सर्वर क्लाउड पे अवेलेबल नहीं है। उसके कुछ रीजन है, वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया हमने? वी हैव इंस्टॉल्ड द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके ऊपर अलग अलग एप्लीकेशन डाल दीजिए। जैसे आप यहाँ डायरेक्टरी सर्वर मतलब ऑथेंटिकेशन के लिए डाल दीजिए। इसको बोलोगे दिस इज अ DNS सर्वर, दिस इज अ वेब सर्वर, दिस इज अ एप्लीकेशन सर्वर, एंड दिस इज अ मेल सर्वर। मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया है। मतलब आपको सर्वर मैनेज करना पड़ेगा, फिजिकल हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करना पड़ेगा, बैकअप मैनेज करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, आपको वो स्पेस मैनेज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, एवरीथिंग, हर चीज आपको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। और क्लाइंट तो पता है आपको, इवन नेटवर्किंग भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नेटवर्किंग। अब
अब यहाँ पे क्या होता है, एक एक सर्विस एक सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं। क्या करते हैं? वी इंस्टॉल वन सर्विस ऑन वन सर्वर। क्या हम लोग दो सर्विस एक सर्वर पे इंस्टॉल नहीं कर सकते क्या? यस, कर सकते हैं। नहीं नहीं, VMware नहीं, वो अलग बात है। यू वर्चुअल मशीन। नहीं नहीं, वर्चुअल मशीन नहीं। अभी हम लोग वर्चुअल मशीन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना? क्या हम लोग एक सर्विस दो सर्विस एक ही सर्वर पे इंस्टॉल नहीं कर सकते क्या? यस, कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंफ्लिक्ट नहीं होता है तो दो या तीन चार सर्विस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि अगर समझो एक सर्विस को इश्यू है तो वो आपके दूसरे सर्विस को भी अफेक्ट करता है। क्या करता है? अगर आपने ये DNS और वेब सर्वर एक ही जगह पे डाल दिया, पता चला वेब सर्विस में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसके कारण DNS सर्वर भी बंद पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है। ओके, इसीलिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वी इंस्टॉल वन सर्विस ऑन वन। अब यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? एक तो है स्पेस, दूसरा है कॉस्ट। कॉस्ट क्यों? पूरा प्रेमाइस मेंटेन करना पड़ रहा है, टीम मेंटेन करना पड़ रहा है, नंबर ऑफ हार्डवेयर मेंटेन करने पड़ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंसेस, एवरीथिंग। ओके, उसका क्या है? रिकवरी टाइम इज हाई। इसका रिकवरी टाइम क्या है? ज्यादा है। अगर सर्वर डाउन हो गया तो उसको रिकवर करने के लिए आपको ज्यादा समय लगता है। क्या लगता है? ओके, चौथा है यू नीड टू टेक केयर ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पता है क्या? यश, श्रीनाथ, वैभव। No, sir. Could you please tell us? डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है? तो बेसिकली आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ माय लैपटॉप। सपोज आज मैंने एक लैपटॉप परचेस किया, दिस इज अ न्यू लैपटॉप एंड माय वेबकैम इज नॉट वर्किंग, राइट? व्हाट मे बी द रीजन? इसका डिवाइस ड्राइवर प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं है मेरे मशीन में, है ना? अब यही सेम एग्जांपल मैं और भी दे सकता हूँ। कभी कभार ना आपका ग्राफिक्स ठीक नहीं आता है, और उस केस में क्या होता है, ग्राफिक्स ड्राइवर्स आपके इंस्टॉल नहीं रहते हैं। कभी कभी मशीन आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क के ड्राइवर्स आपके इंस्टॉल नहीं रहते। ओके, हर हार्डवेयर के डिवाइस ड्राइवर्स अलग अलग होते हैं एंड दैट कंपैटिबिलिटी यू नीड टू मैच। मतलब उस मशीन का डिवाइस ड्राइवर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सपोज माय ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन दिस डिवाइस इज विंडोज 11। ओके, मेरा मशीन कौन सा है? HP का लैपटॉप है मेरे पास। तो मुझे HP के साइट पे जाके उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ड्राइवर्स डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर मेरे पास लिनक्स होता तो मुझे HP के साइट पे जाके मुझे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो ड्राइवर्स है वो मुझे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, सो दीज आर द सम ऑफ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ऑन प्रीमाइसेस बेयर मेटल सिस्टम्स। अब इसको, ये सब डिसएडवांटेजेस कारण क्या आया? दूसरा आया ऑन प्रीमाइस वर्चुअल सर्वर्स, राइट? क्या आया? वर्चुअल सर्विस। मतलब यहाँ पे क्या किया, सपोज हमारे पास 5 सर्विस है, तो हम लोग 5 सर्वर्स रखेंगे क्या? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, विल यूज वन सर्वर, बड़ा कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर ले लेंगे। ओके, हो सकता है इसको 256 MB रैम GB रैम है,
20 TB हार्ड डिस्क है और आपके पास 2 Xeon प्रोसेसर है। यहाँ पे क्या यूज करोगे आप, इंस्टॉल करोगे हाइपरवाइजर। अब हाइपरवाइजर कौन कौन से होते हैं? तो हाइपरवाइजर है आपका VMware का है, VMware ESXi सर्वर नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, है ना। आपका हाइपर वी है, हाइपर वी किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। आपका KVM सर्वर है लिनक्स का, है ना। क्लाउडफ्लेयर भी आता है इसमें। क्लाउड फ्लेयर हाइपरवाइजर नहीं है, क्लाउड फ्लेयर ना आपका CDN है। CDN का मतलब है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है, क्लाउड फ्लेयर इज नॉट हाइपरवाइजर, बट आई मे बी द रॉन्ग ऑल्सो। क्योंकि आजकल होता क्या है, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन हर किसी फील्ड में जाने के लिए तैयार रहता है। तो अगर उन्होंने कुछ नया प्रोडक्ट ये किया है, क्या किया है, के तो इसके सीडीएन के लिए डोमेन वगैरह आईपी सेट करने के लिए वगैरह क्लाउडफ्लेयर यूज करते हैं, लेकिन वैसे हाइपरवाइजर के लिए भी सुना है मैं यूज करता है। आई एम नॉट श्योर क्लाउड फ्लेयर का हाइपरवाइजर है क्या, होगा तो आई एम नॉट श्योर। लेकिन नॉर्मली क्लाउड फ्लेयर का हाइपरवाइजर लोग यूज नहीं करते हैं। होगा तो यस, वी कैन इंक्लूड दिस, बट दीज आर द मोर जनरल प्रोडक्ट्स वी यूज एज हाइपरवाइजर। अब ये क्या करता है, ये आपको वर्चुअल मशीन देता है। मतलब यहाँ पे VM बनाओ, क्या बनाओ, जैसे 5 है ना, मैं 5 ही दिखा देता हूँ आपको, है ना। अब हो गया। यहाँ पे क्या डालेंगे, OS। और हमारे सर्वर्स कौन कौन से थे? ऑथेंटिकेशन सर्वर था, DNS सर्वर था, वेब सर्वर था, मेल सर्वर था, और क्या था, एप्लीकेशन सर्वर था, है ना। यही था। तो ये सब यहाँ पे डाल देंगे। एक है डायरेक्टरी सर्वर, है ना, एक है DNS, एक है आपका वेब सर्वर, एक है मेल सर्वर, और एक है एप्लीकेशन सर्वर, राइट। हाँ, यहाँ पे और एक है, रिसोर्स शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। एक एग्जांपल देता हूं, समझो आपका मेल सर्वर पे रिसोर्सेस कम पड़ रहे, डेटा ज्यादा है, रिक्वेस्ट ज्यादा है, लेकिन वेब सर्वर पे उतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्या रहता है, ये रहता है, रिसोर्सेस लेफ्ट, मतलब अनयूज होते हैं। तो हम लोग शेयर कर सकते हैं क्या, यहाँ का प्रोसेसर हार्ड डिस्क निकाल के यहाँ पे लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे एडवांटेज क्या है, बेटर एडवांटेज, रिसोर्सेस कैन बी शेयर। रिसोर्सेस कैन बी शेयर्ड, मतलब समझो यहाँ पे 5 सर्वर्स है। अब यहाँ पे ना इन्होंने क्या किया है, हर एक को 32 GB रैम दे दी है ना। आपका एप्लीकेशन सर्वर है, या फिर मैं बोलूंगा मेल सर्वर, यहाँ पे 32 GB रैम कम पड़ रहा है, लेकिन आपका वेब सर्वर को 32 GB यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, 10 GB में ही काम हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से निकाल के दूसरे सर्वर को आसानी से दे सकते हैं, है ना। दूसरा, नो नीड टू टेक केयर ऑफ नो नीड टू टेक केयर ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स। जब आप वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, आप जब VM क्रिएट करते हो ना, समझो आपने लिनक्स बेस्ड VM क्रिएट किया, उसका एक टूल
बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है या आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। टूल क्या होता है? एक क्लाइंट टूल होता है। ओके, सी पैनल की तरह कहना चाहिए, सी पैनल सी पैनल इज अ डिफरेंट थिंग। सी पैनल मतलब कंट्रोल पैनल होता है जिसके थ्रू आप सेंट्रली मैनेज कर सकते हैं। सी पैनल नहीं बोल रहा हूँ, है ना? मुझे उस टूल का नाम नहीं याद आ रहा है। एक तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, नहीं तो हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट सेम टूल यू नीड टू इंस्टॉल फॉर मल्टीपल वर्चुअल मशीन। उसका प्रोसेस क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आपको डिवाइस ड्राइवर्स क्या करेगा? हाइपरवाइजर खुद से देखेगा। तीसरा क्या है? बैकअप इज इजी। ऐसा क्यों? अब देखो मेरे पास ना एक हाइपरवाइजर है एनवायरनमेंट, कौन सा बता रहा हूं मैं आपको, ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स हमने इंस्टॉल किया है। ओके, अब ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पे 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। क्या है? वी हैव 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स, राइट? अब मैं यहाँ पे इसका पाथ बता सकता हूँ क्या? स्टोरेज मिलेगा कि नहीं? ये बेसिकली कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, लेकिन 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे पास। मैंने ना यहाँ पे देखिए, सपोज आई गो टू द डी ड्राइव और यहाँ पे इंस्टॉल इमेजेस में जाता हूँ ना, तो मेरे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहे हो, है ना? तो यहाँ पे कुछ फोल्डर ज्यादा भी है, जैसे एंड्रॉइड कुछ काम का नहीं है मेरा, खाली है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, है ना? डी सर्वर में कुछ है क्या? कुछ हो सकता है। तो बेसिकली क्या है, मैंने जो वर्चुअल मशीन क्रिएट की है ना यहाँ पे, बी सर्वर, क्लाइंट सर्वर, तो इन ये बेसिकली क्या है, इस एक एक फोल्डर में एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। अगर मैं सर्वर का साइज देखता हूँ ना, इसमें कुछ नहीं है। ये देखो 17.1 GB, एक पूरा सर्वर उसमें है। मैं इस फोल्डर का अगर बैकअप लेके रखूं तो क्या होगा? मेरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप हो गया, ऐसा समझो, है ना? लेकिन वही लैपटॉप का बैकअप लेना है तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना? तो इसीलिए बैकअप आसान है। तो बैकअप आसान होने के कारण क्या होगा, आई कैन इजीली रिस्टोर द वीएम, है ना? आई कैन इजीली, क्लियर? ओके। और चौथा क्या है? स्पेस कम लग रहा है आपको। पहले 5 सर्वर मेंटेन करते थे, अभी एक ही सर्वर मेंटेन कर रहे हो। तो देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। लेकिन ये दोनों चीजें क्या है? दोनों चीजें हैं आपका ऑन प्रीमाइसेस। ओके, अब देखो ये तो ऑन प्रीमाइसेस है। अब आया डेटा सेंटर। दिस डेटा सेंटर इज प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी वेंडर। दिख रहा है? जैसे टाटा हो गया, टाटा का डेटा सेंटर कहाँ है? दिघे में। कहाँ है? पुणे। रिलायंस का है एरोली में। ये क्या करते हैं? टाटा कम्युनिकेशनच प्रोव्हाइड करतं का? की टाटा टेली सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतं दिघेचं? तुम्हाला माहिती आहे? यस, टाटा कम्युनिकेशन मैनेज करता है आपका डेटा सेंटर। ओके, कौन मैनेज करता है? टाटा कम्युनिकेशन, राइट? मतलब डेटा सेंटर सर्विसेज इज मैनेज बाय द टाटा कम्युनिकेशंस, राइट? तो यहाँ पे आपको जो सर्वर्स मिलते हैं, सर्वर्स क्या मिलते हैं? दे आर प्रोवाइडिंग वर्चुअल सर्वर्स, वर्चुअल सर्वर्स ऑन रेंट। रेंट कैसे हो सकता है? क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ सर्वर। यहाँ पे आपको सर्वर मैनेज करना पड़ रहा है क्या? परचेस करना पड़ रहा है क्या? नहीं। आपका जैसा डिमांड रहेगा उस कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर क्या करेंगे? दे विल प्रोवाइड मी द सर्वर्स।
क्या करेंगे? दे विल प्रोवाइड विद द सर्विस। आपको सिर्फ क्या करना है? रेंट पे करना है। आपको क्या करना है? रेंट। अब इन सर्वर्स को एक्सेस कैसे करेंगे? डोमेन से इंटीग्रेशन होगी। हम्म, डोमेन से इंटीग्रेशन होगी। थोड़ा जोर से बोले यार। डोमेन से इंटीग्रेशन वगैरह कर। नहीं, देखो वो इतना आगे हमको नहीं जाना है, हमको बेसिक चीजें देखना है इनिशियली। ओके। क्या देखना है? ओके। यहाँ पे हम लोग हाउ टू एक्सेस द सर्विस हम लोग आरडीपी के थ्रू कर सकते हैं। आरडीपी इज रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, राइट? है ना? ये किस केस में है? विंडोज अगर मशीन है तो आप आरडीपी यूज कर सकते हो। और एसएसएच यूज करेंगे किसके लिए? सिक्योर्ड शेल। सिक्योर्ड शेल कहाँ पे है? अगर आपका सिस्टम है लिनक्स का, डेटा ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि ये तो सर्वर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, मतलब ये क्या करेंगे? दे विल क्रिएट अ वर्चुअल वर्चुअल मशीन्स फॉर यू। जैसे आपको ऑन प्रीमाइसेस में ना वर्चुअल मशीन मैनेज करना है ना फिजिकल मशीन मैनेज करना है, ये क्या कर देंगे? सर्वर्स क्रिएट कर देंगे और इन सर्वर्स का एक्सेस आपको दे देंगे। आप इन सर्वर को इस तरह से एक्सेस करोगे, मतलब एक सर्वर रहेगा, उसका ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, विंडोज या लिनक्स डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, और उनका कॉन्फ़िगरेशन आप जैसा ये वैसा। लेकिन डेटा ट्रांसफर करने के लिए आप क्या कैसे कर सकते हो? यू कैन यूज एफटीपी। एफटीपी का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट? मतलब समझो डाटा ने आपको सर्वर्स दे दिए, आप अलग अलग चीजों के लिए यूज करोगे। समझो आपने वेब सर्वर यूज करना है, अब वेबसाइट कौन डिजाइन करेगा? आपके डेवलपर ऑन प्रीमाइसेस में अपने अपनी मशीन पे। एक बार बन गया तो सर्वर पे डालने के लिए यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा ना, तो कॉपी करने के लिए आपको है एफटीपी। एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना? ओवर द इंटरनेट यू कैन ट्रांसफर बल्क डेटा। एफटीपी का मतलब क्या होता है? यू कैन ट्रांसफर बल्क डेटा। बल्क मतलब ज्यादा। छोटा सा डेटा है तो हम लोग क्या मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, है ना? लेकिन ज्यादा डेटा है तो आपको कोई वेबसाइट अपलोड करना है, वेबसाइट का साइज है 10 GB, हो पाएगा क्या मेल के थ्रू? नहीं हो पाएगा, है ना? तो आपको एक सिक्योर चैनल चाहिए, तो ये एफटीपी के थ्रू आपको प्रोवाइड कर सकता है। क्या कर सकता है? चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है क्या? यस तुषार। नो सर। No, sir. ओके, देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के Hello. साथ है ना, थोड़ा सा एंगेज अगर रहोगे, अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन हो गया ना तो अच्छा लगता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है और आपको भी बेटर समझ में आएगा, है ना? क्या है? हाँ, ये हो गया। इसके ऊपर है डेटा से आपका क्लाउड। क्या है? मतलब इंटरनेट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? ये है इंटरनेट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या किया है, समझो एडब्ल्यूएस का ही एग्जांपल लेता हूं मैं। एडब्ल्यूएस ने क्या है, अब बैकएंड में अलग अलग डेटा सेंटर्स ले लिया उन्होंने। एक तो एडब्ल्यूएस क्या करेगा, खुद का डेटा सेंटर डिप्लॉय करेगा,
नहीं तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर है उसी से स्पेस लेगा। नॉर्मली ऐसे ही करते हैं। अगर Amazon AWS बोलता है, AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? पुणे में नहीं है, अजूर का है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर का, मुंबई में है इनका। तो ये लोग क्या मुंबई में डेटा सेंटर एस्टेब्लिश करेंगे? क्या नहीं, वो एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर जिसका है उन्हीं से लेते हैं। तो समझो एक डेटा सेंटर है यूएस में, दूसरा है यूरोप में, तीसरा है इंडिया में, चौथा है चाइना में। अब एक एक ही रहेगा क्या? ऐसा नहीं है। अगर यूएस में आपके कस्टमर भी ज्यादा है तो डेटा सेंटर भी बहुत ज्यादा इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इन सब को इंटीग्रेट किया जाता है https aws.amazon.com पे। ये इनका वेबसाइट है। अब ये कहाँ हो गया? इसके साथ इंटीग्रेट हो गया। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो इंटीग्रेट करने के लिए कुछ टूल्स है, वो टूल्स का नाम मैं बता देता हूं। एक तो है पैकस्टैक या ओपन स्टैक। क्या है? ओपन स्टैक ये ओपन सोर्स प्रोडक्ट है। ओपन स्टैक क्या है? ओपन सोर्स है ना, ओपन सोर्स मतलब फ्री। और पैकस्टैक किसका है? रेड हैट का है। अगर आपने पैकस्टैक इंस्टॉल किया, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप रेड हैट से हेल्प ले सकते हो। क्या ले सकते हो? यू कैन टेल हेल्प फ्रॉम रेड हैट। आप रेड हैट से हेल्प ले सकते हो, है ना। तो ओपन स्टैक से क्या है? ओपन स्टैक है ओपन सोर्स प्रोडक्ट। पैकस्टैक क्या है? कुछ लोग ओपन स्टैक क्लाउड कंप्यूटिंग भी करते हैं। क्या करते हैं? तो ओपन स्टैक क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? हाउ टू क्रिएट क्लाउड एनवायरमेंट, हाउ टू क्रिएट क्लाउड एनवायरमेंट। आप इसको आप एक्सेस करो इस वेबसाइट पे लॉगिन करके। चलो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं ना aws.amazon.com पे जाता हूँ। ओके, यहाँ पे जाने के बाद मैं लॉगिन करता हूँ। क्या करता हूँ? लॉगिन। यस, और मैं कहा हो गया? AWS के पोर्टल पे लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के लिए मेरा अकाउंट AWS पे चाहिए, है ना। अब यहाँ देखो इतने सारे रीजन हैं। अब देखो ये तो रीजन है, यहाँ पे कुछ ना रीजन्स मैंने इनेबल नहीं किए। क्या नहीं किए? ये देखो, ये रीजन्स हमने इनेबल किया है क्या? नहीं किया। जैसे थाईलैंड का रीजन हमको इनेबल करना है तो हम यहाँ पे जाके इनेबल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब ये रीजन यहाँ पे आपको दिखेगा। आया क्या? कहीं ना कहीं तो होगा। ओके, मतलब कुछ रीजन्स यहाँ पे दिखा है। चलो मतलब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? रीजन को एनेबल भी कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ रीजन नहीं दिखा तो यहाँ जाके आप एनेबल करो तो रीजन दिखेगा। अब होता क्या है, कभी जब जब कभी कस्टमर लॉगिन करेगा AWS पे, जरूरी है क्या वो दुनिया भर के जितने सारे रीजन है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा? नहीं। नॉर्मली मेरा एग्जांपल ले लो तो समझो मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ और मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट है। कुछ कंपनीज यूएस की है, कुछ
यूके की है, कुछ ऑस्ट्रेलिया की है। तो मेरा बिजनेस ही तीन ही कंट्री में। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, यूएस का डेटा सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा यूएस क्लाइंट के लिए, यूके के डेटा सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा यूके के क्लाइंट के लिए, और ऑस्ट्रेलिया के डेटा सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट के लिए, राइट। दुनिया भर के सभी डेटा सेंटर में करने की जरूरत है क्या? नहीं, लेकिन मुझे एक्सेस तो है, मैं चाहूं तो वहां जाके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे ना आप यहाँ पे EC2 इंस्टेंस क्या होता है? वर्चुअल मशीन होता है। क्या होता है? अब यहाँ पे रीजन कौन सा दिख रहा है? मुंबई बाय डिफॉल्ट। मतलब बाय डिफॉल्ट क्रिएट करूंगा तो मेरा सर्वर क्रिएट होगा मुंबई में। कहाँ क्रिएट होगा? इसके लिए एक हाँ, किसी भी रीजन में भी, मुंबई हमारे से नजदीक है इसलिए मुंबई दिखा रहा है, आप दिल्ली में होंगे तो दिल्ली का दिखाएगा। दिल्ली में रीजन नहीं है। सपोज एग्जाम्पल। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। लास्ट टाइम when I create resources, at that time my region was Mumbai, that's why it is showing Mumbai. ओके। Okay, अगर मैं नॉर्थ वर्जीनिया सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा? ये देखो ऊपर नॉर्थ वर्जीनिया आ गया। हाँ। अगर मैं दूसरा कोई रीजन सिलेक्ट करता हूँ, सिंगापुर सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊपर सिंगापुर आ जाएगा। Now if I create any server, it will be created inside Singapore region, मतलब सिंगापुर के डेटा सेंटर में जाएगा। अबे मुंबई में क्यों आता है? नॉर्मली आई प्रेफर टू क्रिएट माई रिसोर्सेस इन अ वन रीजन और वन डेटा सेंटर, इसीलिए वही बार बार वही दिखाता है। अब मैं तो क्या है, प्रैक्टिस के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए क्रिएट करता हूँ ना, मेरा कोई प्रोडक्शन यूज तो नहीं है कि भाई मेरा क्लाइंट इंडिया में है इसलिए मैं इंडिया में क्रिएट करूंगा, मेरा क्लाइंट है यूएस में इसलिए यूएस में क्रिएट करूंगा, ऐसा करूंगा क्या? नहीं। तो हम है इंडियन, तो मुंबई वाला पास में है तो ये वहीं से ले लेते हैं, है ना। लेकिन रीजन कौन सा चूज करना है, डिपेंडिंग ऑन योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। आपने एक हाँ बोलिए ना। हाँ हेलो सर, सो यस। सो इज इट नेसेसरी, मतलब ये नेसेसरी है क्या कि अगर मेरा क्लाइंट अगर यूएस में है और इफ ही वांट्स टू एक्सेस द ऐप, सो आई नीड टू चूज द यूएस रीजन, करेक्ट? हाँ, नॉर्मली तो ऐसा ही होता है ओके ओके कि ओके सर। इसमें ना एक इशू आता है। एक इशू क्या है? वन थिंग इज कंपाइलेंस रिक्वायरमेंट। क्या आता है? ओके नाउ व्हाट इज कंपाइलेंस रिक्वायरमेंट? Compliance requirement, every country says that their organization data should be reside in their own country. Country क्या बोलता है? Says our organization data or services should reside in our own country. जितना सारा मॉडर्न कंट्रीज है उनका तो ये रिक्वायरमेंट आई है। जैसे आप यूएस लो, यूएस का किसी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट आपके पास है, ओके, वो क्या बोलते हैं? आपको डेटा इंडिया में नहीं रखना है, आपको डेटा कहाँ रखना है? यूएस में। क्योंकि कल जाके पता चला वर्ल्ड वॉर हो गया या वॉर हो गया, है कि नहीं? तो इंडिया में यस सर। डेटा है तो इंडिया क्या बोलेगा? आई डोंट प्रोवाइड द डेटा। मैं डेटा सेंटर का कनेक्टिविटी है तो फिजिकल कनेक्टिविटी है ना, दिखता आपको है, लेकिन बैकएंड में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ना, इसीलिए कंट्री लिस्ट रहना नहीं चाहता है। इवन इंडिया इज ऑल्सो स्टार्टेड दिस सेम थिंग। आपने बीच में सुना होगा मास्टर कार्ड एंड वीजा, है ना, ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है ना, इनको बोला गया है कि इंडियन कस्टमर का डेटा आपको सिर्फ इंडिया में ही रखना है, आपको बाकी कंट्रीज में। पहले ये लोग क्या करते थे, बिजनेस यहाँ करते थे, डेटा कहाँ रखते थे? यूएस में। बाद में इन्होंने क्या बोला कि ठीक है हम लोग डेटा यूएस में ही रखेंगे, एक कॉपी हम लोग इंडिया में रखेंगे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली सेज नो, यू नीड टू कीप योर डेटा इन इंडिया ओनली। ऐसा क्यों? कल अगर अमेरिका का दिमाग घूम जाए तो क्या बोलेगा?
सारा पैसा कितना नहीं नहीं ऐसा नहीं, देयर विल बी ट्रबल फॉर एक्सेसिंग द ट्रांजैक्शंस, राइट? और सब कंट्रोल किसका रहेगा? उनका रहेगा। इसीलिए भी रुपए कार्ड आपका फेमस हो रहा है आजकल, है ना? Yes. बैंक्स क्या करती है? यस। तो अगर कंट्री चाहे तो डेटा अलग दूसरे कंट्रीज में भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली क्या बोलते हैं, उसी कंट्रीज में डेटा रखो। अब देखो, ये अगर आपने देखा है तो चाहे ऑन प्रीमाइसेस बेयर मेटल सर्वर हो, चाहे वर्चुअलाइजेशन हो, चाहे डेटा सेंटर हो, या चाहे क्लाउड हो, डेटा सेंटर दिखता कैसे एक बार बता देता हूं। अगर मैं यहाँ पे डेटा सेंटर्स की बात करूं, तो ये इस तरह से दिखता है डेटा सेंटर, है ना? मतलब बहुत बड़े बड़े प्रेमाइसेस रहेंगे, उस प्रेमाइसेस में क्या रहेगा? बहुत सारे फ्लोर्स रहेंगे, और हर एक फ्लोर में ऐसा ही रहेगा, है ना? अल्टीमेटली है क्या, चाहे हमको दिखने में सर्विस कोई भी दिखो, लेकिन बैकएंड में फिजिकल मशीन ही काम करता है। सिर्फ नेचर क्या हो गया, नेचर चेंज हो गया। पहले हम लोग सर्वर मैनेज करते थे, अभी कोई और मैनेज करता है, अभी कोई और मैनेज करता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास है ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है ना? मतलब बिना सर्वर के, फिजिकल सर्वर पे आप सर्वर का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ नेचर चेंज हो गया। ऑपरेट कौन करेगा? सिर्फ नेचर हो है। अब देखो, हमने पहला दोनों का ड्रॉबैक देखा था, ऑन प्रीमाइसेस बेयर मेटल्स का, ऑन प्रीमाइसेस वर्चुअल मशीन का। डेटा सेंटर का ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक क्या है? नहीं, कॉस्टली हो सकता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। ड्रॉबैक क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन is done by data center executives. इनका सर्विस विंडो में भी सर्विस विंडो इज लार्ज, मतलब नॉर्मली मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, 48 आवर्स। अगर आपको सर्वर चाहिए तो आप क्या करोगे? मेल रखे हुए हैं उनको, भाई हमको सर्वर चाहिए, तो वो बोलेंगे हमारा सर्विस विंडो है 48 आवर्स का, विद इन 48 आवर्स आपको मिल जाएगा। कल आपको पता चला सर्वर नहीं चाहिए, आपको मेल लिखना पड़ेगा, विद इन 48 आवर्स रिमूव कर देंगे। कल आपका कॉस्ट नहीं, कॉस्ट इज अ डिफरेंट फैक्टर, कॉस्ट यहाँ पे नहीं आता है। कॉस्ट थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग में या डेटा सेंटर में, लेकिन कॉस्ट फैक्टर हम लोग उतना अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने एग्जांपल नहीं लिया, है ना? लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग है डेटा सेंटर एग्जीक्यूटिव्स पे, ओके। अब दूसरा भी एक देख लीजिए, समझो मेरा एक क्लाइंट है यूके में, दूसरा है यूएस में, तीसरा है इंडिया में, चौथा है ऑस्ट्रेलिया में। तो मुझे अलग अलग डेटा सेंटर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना। यूके में का डेटा सेंटर कोई और हैंडल करता है, यूएस का कोई और हैंडल करता है, इंडिया का कोई और हैंडल करता है, और ऑस्ट्रेलिया को कोई और हैंडल करता है। दिस इज वन मोर प्रॉब्लम, है ना? अगर आपने कोई सर्वर ले लिया तो हो सकता है उनका पेमेंट, ये क्या है, टर्म्स 3 महीने का एडवांस पेमेंट है। अगर आपने पेमेंट दे दिया तो उसके बाद चाहे यूज करो ना करो। लेकिन क्लाउड पे ऐसा नहीं है ना, आप क्लाउड पे क्या बोलते हो? पर सेकंड बिलिंग। यू कैन प्रोविजन
इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे चाहो तो आप बता सकते हो, लेकिन मुझे लगता है डेमो सेशन में एक सर्वर मैंने बना के दिखाया था आपको। नहीं बताया तो बता देता हूँ। चलो, आप AWS के पोर्टल पे लॉग इन हो, है ना? ये है, अच्छा, AWS पोर्टल। इसको ये नहीं कर सकते हैं। मैं ना एक सर्वर बनाता हूँ, जस्ट शो करना है आपको कैसे बनाया है, क्या बनाया है, ये मुझे बताना है क्या? नहीं, कहाँ पे बनाना है? चलो, आपको इंडिया में नहीं बनाना है, आपको यूएस में बनाना है। कहाँ बनाना है? यूएस में। तो मैंने यूएस का रीजन ले लिया। यहाँ पे एक वेब सर्वर बना के दिखाता हूँ आपको। हम देखेंगे हमको कितना समय लगता है और कहाँ पे बना सकते हैं ना। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ वेब सर्वर 10 नाम दे देता हूँ, है ना? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया, ये कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। T3.micro फ्री टियर में है, मतलब फ्री है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? की पेयर, वेब सर्वर 10 नाम का की पेयर मतलब बेसिकली इस इंस्टेंस को ओपन करने के लिए की है ना? एंड आई वांटेड टू कॉन्फ़िगर दिस सर्वर एज वेब सर्वर। यस, कब तक रन होगा? कब तक करना है? जब आप बताओ, जब भी हो जाएगा सर। दो कैंडिडेट्स होंगे सर, थोड़ा सा फर्स्ट में बात करा था। नहीं, वैसे 12 से 2 था, लेकिन क्लास थोड़ा सा लेट शुरू हुआ। ठीक है चलेगा, जब भी आपको ना आप एक बार 2 बजे के आसपास करते हैं। ओके, तो हो गया। अब सर्वर रनिंग हो गया। इतना जल्दी आप ऑन प्रीमाइसेस में सर्वर क्रिएट कर सकते हो? नहीं, बहुत समय लगता है ना? वर्चुअल सर्वर बनाना है तो भी आधा पौन घंटा लगता है। प्रैक्टिकली अगर आपने किया होगा तो डेटा सेंटर में भी 48 आवर्स लगेगा। अब इस सर्वर को मुझे क्या करना है? आई विल कॉन्फ़िगर दिस सर्वर एज अ वेब सर्वर, है ना? राइट, मैं सर्वर को लॉग इन कर दिया। मैंने एक पैकेज इंस्टॉल कर देता हूँ। मैं सिर्फ आपको शो कर रहा हूँ कि मैं इसको वेब सर्वर बना रहा हूँ भाई। चाहे जो रीजन में सिलेक्ट करूँ वहां पे बना सकता हूँ और उसके बाद डिलीट भी कर दूं। और मुझे चार्ज कितना लगेगा? जितना मैंने यूज किया उतना। मिनिमम बिलिंग लगता है 1 घंटे का। कितने का लगता है? 1 घंटे का, है ना? और इसके लिए समय कितना लगा टोटल? और ये सब जो है, ये किसके हाथ में है? मैं चलो एक वेबसाइट ही क्रिएट करके बताता हूँ आपको। तो ये है क्या क्या नाम है इसका? नहीं, यहाँ पे ना एक टेम्पलेट डालेंगे हम लोग। एक टेम्पलेट डेमो एक वेबसाइट है जो आपको फ्री वेबसाइट के टेम्पलेट देता है। क्या देता है? जैसे मैं क्या करूँगा, डाउनलोड में जाएंगे ना। टेम्पलेट डाउनलोड हो गया क्या? हो गया डाउनलोड। तो
ऐसे का तो मतलब करना। ओके, मैं क्या करता हूँ, CV स्पेस हाइफन है, टेम्पलेट, आ गया। मैं इसको सिस्टम सीरियल स्टार्ट HTTP, सिस्टम सीरियल बन गया वेबसाइट। मैं लोकली इसको एक्सेस करके देखता हूँ, है ना। ये वेबसाइट ओपन हो गया, लेकिन ये कमांड लाइन है इसलिए अच्छे से दिखेगा नहीं। हेलो सर। हेलो। कैसे हो? हेलो। हेलो, यस। यस सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉप इंस्टेंस एंड टर्मिनेट इंस्टेंस सर? आई मीन, अगर मैंने स्टॉप इंस्टेंस किया तो भी मेरा चार्ज नहीं आप होने बता वाला दो, ना उसमें? ये मैंने क्या हाँ हाँ। किया, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है बेसिकली ये फोर्स टर्मिनेट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टर्मिनेट किया है। ये टर्मिनेट इंस्टेंस एंड स्टॉप इंस्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, आई विल टेल यू। टर्मिनेट का मतलब होता है डिलीट इंस्टेंस। क्या होता है? डिलीट। ओके, सो डेटा भी चला जाएगा उसका? यस, पूरा इंस्टेंस ही डिलीट हो जाएगा। और ओके ओके स्टॉप का ओके, मतलब क्या गॉट होता है? वी आर स्टॉपिंग द इंस्टेंस, राइट। इट। इसको फ्यूचर में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओके, स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। so we can resume with मतलब our data. Okay, yes. Got it, sir. Terminate is यस, permanently deleted, na sir? And stop is ये temporary टर्मिनेट का stop. मतलब होता है परमानेंटली डिलीटेड, और स्टॉपिंग का मतलब है Hmm. इट इज इक्विवेलेंट टू शट डाउन द वर्चुअल मशीन, है ना। स्टॉप अगर करोगे तो आपको वर्चुअल मशीन का या इंस्टेंस का पैसा नहीं लगता है, क्योंकि आपने बंद कर दिया। लेकिन जो स्टोरेज रहता है बैकएंड में, उसका पैसा आपको लगेगा, लेकिन नहीं। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेट? डिलीटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड स्टॉप का मतलब होता है बंद करो, फ्यूचर में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। अब देखो, ये हमारा इंस्टेंस क्या हो गया, इंस्टेंस इज टर्मिनेटेड। अब वो बोलेंगे यहां से एंट्री क्यों नहीं जाता, तो अगर यहाँ पे टर्मिनेटेड आ गया, इसका मतलब है दिस इंस्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेटिंग और इट इज टर्मिनेटेड। अब यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, हो सकता है थोड़ी देर में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ से डिलीट रिमूव हो जाए, है ना। टर्मिनेटेड आ गया, इसका मतलब है डेफिनेटली योर इंस्टेंस इज टर्मिनेटेड। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। चिंता करने की जरूरत क्यों, मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं, क्योंकि दिस इज एनवायरमेंट इज चार्जेबल, है ना। आपको ट्रेनिंग करना है, तो ट्रेनिंग करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट तो आपका मंथली खर्च होना ही है। से फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए, एक हमारा बजट पकड़ते कि भाई 500 रुपीज आई एम रेडी टू पे टू लर्न दिस थिंग, ठीक है। लेकिन 5,000 आ गया तो इट विल बी हेवी ऑन योर पॉकेट, राइट, क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा, है ना। तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, प्रैक्टिकल होने के बाद, यू नीड टू डिलीट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। आपको क्या करना है?
इंफ्रास्ट्रक्चर को डिलीट भी करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करोगे तो वो पैसा आपको रिकरिंग चार्ज लगेगा। इसमें रिमाइंडर वगैरह रहता है क्या, मतलब इसका अभी डिलीट करना है कब, कैलकुलेशन के हिसाब से? नहीं, रिमाइंडर कैसे सेट करोगे? मतलब कि अभी डिलीट करना है कुछ दिन बाद, तो उसके लिए रिमाइंडर वगैरह देता है क्या डेवलप्स? हमारे सॉफ्टवेयर में देता है कुछ कि अभी स्टोर में रखा है आपने सर्वर बना के, आप उसको यूज नहीं करेंगे, आपको 10 दिन के बाद उसको यूज करना है, तो 10 दिन के तो बाद। आपने कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर यूज किया होगा। अच्छा, मतलब ऐसे। AWS का ऐसा कोई सर्विस होगा तो देखना पड़ेगा। ओके। ओके, रिमाइंडर के लिए भी है ना, लेकिन जहां तक है तो बेसिक सर्विसेज में तो रिमाइंडर का सर्विस नहीं आते। अब होता क्या है प्रोडक्शन में, दे यू यूज अ लॉट ऑफ सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द जनरल यूज केस, है ना। हो सकता है बहुत सारी सर्विसेज हमको डिलीट करना है लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, तो एट दैट टाइम यू मे कॉन्फ़िगर रिमाइंडर थिंग। बट आप थर्ड पार्टी टूल भी तो यूज कर सकते हो ना, राइट। यू गॉट द एंट्री, यहाँ मुझे डिलीट करना है तो 4 दिन पहले मुझे रिमाइंडर आना चाहिए। AWS में होगा तो देखेंगे हम लोग। इसलिए पूछा कि अगर हम प्रीटियर में नहीं नहीं सर, बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन कोई सर्विस है उसको कस्टमाइज करना है तो डेफिनेटली जितना यूज केस है उतना सॉल्यूशन भी मार्केट, जितना यूज केस है उनका जरूरत के हिसाब से सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है। चलो फ्रेंड्स, समझ में आया क्या? यस सर। Yes, कोई sir. डाउट? सर नो आपने सर। डेमो में बताया था कि प्रीरिक्विजिट लिनक्स था, और एक कुछ बोला था ना आपने? हाँ, इसका सीखने के लिए ना जो प्री रिक्विजिट है वो क्या है, एक तो लिनक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इस ट्रेनिंग के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो क्या है, लिनक्स, है ना। तो एक आना चाहिए लिनक्स और दूसरा आना चाहिए बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स। मोस्टली बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में क्या आना चाहिए, आपका आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग अच्छे से आना चाहिए। वैसे तो डिटेल में नेटवर्क आया तो अच्छी बात है, ओके, लेकिन आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना बहुत सारे सर्वर हम लोग बनाएंगे, उसको आईपी देंगे। अब यही आईपी क्यों दिया, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। नहीं तो आप उसी के बारे में सोचते बैठेंगे और जो मेन है सीखना वो रह जाएगा, है ना। या फिर हम हैंडीकैप रहेंगे, मतलब उस चीज के लिए आप किसी और के ऊपर डिपेंड रहेंगे, है ना। तो बेसिकली आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग तो मैं बता दूंगा एक सेशन में, डोंट वरी। लिनक्स का थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा क्योंकि लिनक्स डीप में होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे जो बताऊंगा, जो मुझे जरूरत है उतना ही बताऊंगा ना। लिनक्स का मतलब है ना wget कमांड, कमांड सिर्फ उतना ही तो थोड़ी है, पूरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, प्राकृतिक वगैरह। यस। अब wget इज वन ऑफ द कमांड। आज हमने क्या यूज किया, जैसे yum इंस्टॉल httpd, एक कमांड यूज किया। दूसरा क्या यूज किया आपने, wget कमांड यूज किया, वो डाउनलोड करने के लिए होता है। फिर अनजिप कमांड यूज किया, वो बेसिकली एक्सट्रैक्टेड को, फाइल को ये किया, अनजिप किया। ओके, cp कमांड यूज किया, कॉपी। तो बेसिकली लिनक्स कमांड आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना। लेकिन लिनक्स इज कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कमांड, हाउ यू यूज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज द रीजन ऑफ कमांड। कमांड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कैसे करेंगे। क्लियर? ओके, चलो, और कोई डाउट है आप लोगों के? सर हम लोग जो सर यहाँ पे AWS कोई स्टार्ट करेंगे, ट्रेनिंग्स वगैरह प्रैक्टिकल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे क्या? हाँ, तो प्रैक्टिकल इसी तरह से होगा ना बॉस, जैसे आज मैंने बता दिया। आज तो मुझे मेरा इंटेंशन था कि जस्ट आपको बताना कैसे क्रिएट करते हैं, कहाँ क्रिएट करते हैं, कितना देर लगता है, कितना पैसा जाता है। बट व्हेन वी विल लर्न EC2 इंस्टेंस, तो एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ हाउ टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस, और फिर आपको वो क्रिएट करना है। ओके ओके, सो बेसिकली हमारा जो सेशन ओके होगा वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेगा। ओके, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मीन्स इनिशियली थोड़ा सा थ्योरी हो सकता है, बट नेक्स्ट सेशन से आपको क्या लगेगा, यू विल रिक्वायर अ डिवाइस। और मेरा रिक्वेस्ट है ओके कि जब हमारा सेशन चल रहा है तभी आप
लैपटॉप से चीजें परफॉर्म करो, क्योंकि आप बोलोगे Yes, बाद sir. में करते हैं, तो बाद में क्या होता है, वो ट्यूनिंग नहीं हो पाता है। तो अगर आप अभी क्लास चलते समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुआ, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, है ना। अगर नहीं तो फिर क्या Yes, होता है, sir. वो नहीं हो पाता। क्लियर? और Yeah. कोई क्वेश्चन? अशरफ, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर, मुझे ये पूछना था, मतलब AWS का अकाउंट क्रिएट से स्टार्ट करेंगे ना पूरा आप? यस, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। ओके सर, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में, हाँ, और एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो जी बेसिकली टू क्रिएट AWS अकाउंट, आपको क्या लगेगा? सबसे इंपॉर्टेंट जो है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में क्या आएगा? आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड आएगा ना। क्या आएगा? क्रेडिट या डेबिट कार्ड, है ना। लेकिन ये होना चाहिए वीजा और मास्टर कार्ड। अगर आप बोलेंगे मेरे पास रुपए कार्ड है तो नहीं चलता है। रुपे कार्ड इज नॉट एक्सेसिबल, रुपे कार्ड नहीं चलेगा। हाँ सर, मेरा नहीं ओके। हुआ वो, फोन पे से करना हाँ, पड़ा मुझे। और दूसरा क्या है आपको, ऑनलाइन इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल होना चाहिए। वो कहाँ से होता है? आपका अगर ऐप है तो वहां से ऑनलाइन इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल हो जाता है। ओके। और आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड, वीजा या मास्टर कार्ड होना चाहिए। और अकाउंट क्रिएट करने के लिए 2 रुपए अमाउंट डिडक्ट होता है। क्या होता है? एज अ वेरिफिकेशन, है ना। क्लियर? और एक चीज बताना था, यस, जब आप ऑनलाइन इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल करोगे तो व्हाट यू कैन डिसाइड, यू कैन डिफाइन द लिमिट ऑफ स्पेंडिंग। क्या कर सकते हैं? जैसे आपने लिमिट कर दिया 1,000 रुपए, नॉर्मली फ्रॉड होता है ना, कि भाई ऑनलाइन आपने इनेबल कर दिया और अगर आपने लिमिट डाल दिया 1,000 रुपीज, तो मंथली 1,000 रुपए के ऊपर कोई आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। एकदम बहुत मिनिमम भी मत करो, 200, 400, 500 रुपए, 1,000 रुपए कर दो। मतलब ऐसा अमाउंट कि कल अगर फ्रॉड हो भी जाता है तो वी शुड एबल टू सस्टेन, है कि नहीं। तो वो आप लिमिट लगा दो। हालांकि आप हर किसी ट्रांजैक्शन के लिए लिमिट लगा सकते हो, इवन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए भी लिमिट लगा सकते हो। मैक्सिमम अमाउंट इतना नहीं जाना चाहिए, वो भी कर सकते हो, है ना। ओके। और इफेक्टिव ट्रेनिंग के लिए आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट्स, है ना। इफ यू विल आस्क मी द क्वेश्चन देन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू। ओके। ये ऑफलाइन स्टूडेंट के साथ नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑफलाइन स्टूडेंट्स का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिकली समझ में आता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में के साथ ऐसा नहीं है। तो अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द आंसर। ओके। और आज के लिए हम लोग Sir, आप स्टॉप कर दें। हेलो ओके। हाँ, बोलिए भाई। सर सिलेबस दिखा सकते हो आप? सिलेबस शायद इनके वेबसाइट पे तो है ना। एक मिनट, मैं शायद दिखा देता हूँ। AWS डेवॉप्स है ना। इसको क्लिक करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा। यही सिलेबस है ना। ओके ओके सर, श्योर। ये ये देखो, क्लाउड फॉर्मेशन, IAC, एनसिबल। दिस इज द सिलेबस, राइट। ओके सर। ठीक है।
Yeah. हॅलो येस द्या ना मग घरी वॉचमॅन आहे का तिथे हा द्या ना त्याच्याकडे हा 1 मिनिट मला फोन येतोय